Good morning, the student. How are you? I hope that you all are fine at your home and follow all the rules directed by the government. Mask, wash your hand frequently, wearing mask, maintaining social distance, and all the safety precautions that should be needed. So, my dear student, I am Iftihar once again to conduct the class of 10th physics. In the previous classes, we have studied about the electricity and the importance. Now, we are going to start the chapter number 12. So, yeah, what is the name of the chapter? The chapter is exercise 12. The name of the chapter is electricity. Electricity. We are going to start the chapter electricity from NCERT. Okay, my dear student, in this chapter we have to study about the following topic. Following topic that should be necessary in this chapter. First topic is that introduction. We have already done in the previous class. Introduction. Electricity is a part of an electricity is a form of energy which is very necessary in our modern life, and then after we will know about the current. It in this topic there are two types of current. First one is known as AC and second one is known as DC. It should be discussed later. Okay, and now some important facts about current. Okay, after that, potential difference, potential difference, volt, voltmeter, electric circuit, components of electric circuit, electric. We have already done this topic in class, but due to lockdown and we have after a long period of time, I think some of the students forgot the topic what did they studied in the previous classes. So that's why I started the chapter again, which helps to make you understand it proper way. Components of electric circuit, symbol. Okay, now after that, resistance. In this chapter, first they have described the Ohm's law and after that the resistance. But we are going to start resistance first, and after completing the resistance, we are going to start the Ohm's law as far as syllabus required. Resistance, factors, sorry, factors of resistance,
okay. Factor of resistance, combination of resistance, combination of resistance. There are two types of combination. First one is series combination, parallel combination, after that electric power, and then effect of electric current, and effect of electric current. And in this effect of electric current, we have two different effect of electric current studied in this chapter. First one is heating effect, and second one is lighting. Magnetic effect of electric current we have to study it in the next chapter. Okay, so this would be the part of the topic that we are going to start. Okay, so without wasting our time, we are going to start our topic from point to point. Okay, so first we are going to discuss the introduction of electricity we have done in the previous classes. Okay, now we are going to study about the basic concept of current. Okay, so the basic concept of current is here that should be defined as the following. First, in this chapter, we are not able to study about the current without knowing a particular word that is known as charge. If we don't know about what is charge, we are not able to study the electric current. बिकॉज हर चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म फिक्स्ड होता है बेटा. जब तक हम प्लेटफॉर्म का ट्रेन का टिकट नहीं लेंगे, क्या हम ट्रेन पे बैठ सकते हैं? अगर हमको ट्रेन से कहीं जाना है तो बिना टिकट लिए हुए हम लोग तो बैठ सकते नहीं हैं. इसलिए हम लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा एक टॉपिक जिसका नाम है चार्ज. ठीक है, ये चार्ज है क्या? व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इट is a fundamental particle in an atom. It is a fundamental particle of an atom. Okay, it may be positive or negative. In the class 9, you have already studied about the structure of atom. आप लोगों ने क्लास 9 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जब पढ़ा था तो आप लोगों को याद होगा कि एटम एक सर्कुलर पाथ होता था. उसके बीच में एक सेंटर होता था जहां पर न्यूक्लियस लाइज होता था, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाइज होता था. जहां पर प्रोटॉन जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता था, और ये जो सर्कुलर पाथ है यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटता रहता था. क्लियर है? जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन जो है
वो निगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल होता है। और हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता था, ये होता था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना चार्ज कैरी करता था। और अगर हम बात करें 1 प्रोटॉन की, तो इसके ऊपर भी वही चार्ज हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये एक्चुअली इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.602, बट हम लोग इसको राउंड फिगर में 1.6 लेकर ही चलते हैं, इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है बेटा? तो यहां पर हम लोगों ने एक चीज के लिमिटेशन देखा था कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के साथ साथ बंधा हुआ है, जिसके वजह से प्रोटॉन जो है वो मूवेबल पार्टिकल नहीं है। तो करंट में ये आपका जो एटम के अंदर है, जो मूविंग पार्टिकल्स कौन है, ये हम लोग यहाँ पर हम लोग सिर्फ जानते हैं कि करंट में मूवेबल पार्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है जो मूव करता रहता है। इसीलिए जब हम लोग इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझेंगे तो हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि एक करंट जो है इस तरह से कि वायर से जब करंट होता है, तो अब हम लोगों ने दो तरह के एक एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब करंट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि दो तरह के चार्ज होते हैं। तो जब चार्ज दो तरह के बेटा, तो चार्ज के बारे में हम लोगों को एक टर्म भी पढ़ना होता है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया हुआ है, ये सारा टॉपिक आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट चैप्टर को समझने के लिए हम लोगों को इन सारे चीजों को स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चार्ज में भी आपका हमने आपको बताया था कि अभी जो चार्ज होता है वो जनरली दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन की वजह से होता है और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। तो सबसे पहले चार्ज की जब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें ये जानेंगे बेटा कि लाइक चार्जेस रिपेल each अदर। लाइक चार्जेस रिपेल each अदर, इसको इस तरह से हम लोग समझते हैं। मान लिया कि मेरा ये एक वायर है, ये एक कंडक्टर वायर है, यहां पर ये एक प्लस चार्ज है और यहां पर ये भी एक प्लस चार्ज है। अब देखिए, एक ऐसा होता है कि अगर दो नेता आपस में इलेक्शन के लिए खड़े हैं, एक ही पार्टी के हैं और दोनों वोट इलेक्शन में खड़े हो गए, तो ये चाहेंगे कि भाई हम जीते, है ना, चाहे दोस्त ही क्यों ना हो, और यहां पर ये चाहेंगे कि हम भी जीते। ठीक है, चाहे दोनों एक दूसरे के पूरे अच्छे से दोस्त ही क्यों ना हो, मगर वो दोनों जो है वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो हर कोई अपना जीतना चाहेगा। तो अगर ये चार्ज एक दूसरे चार्ज के अपोजिट में आ जाता है, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज नहीं चाहेगा कि ये चार्ज आगे बढ़े, और ये वाला चार्ज जो है ये नहीं चाहेगा कि ये वाला चार्ज यहां से जो है वो आगे बढ़े। तो ये क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। सेम कंडीशन यहां पर ये नेगेटिव के सेंस में भी हो सकता है। चार्ज आपका दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, यहां पर दोनों सेंस वही काम कर सकता है। यानी यहां पर हम लोग इसको ले सकते हैं कि यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक है, ये माइनस क्यू हो गया और यहाँ पर प्लस क्यू हो गया, या इसको भी हम लोग माइनस क्यू ही ले लें ताकि पता चल जाए कि लाइक चार्जेस है। तो ये दोनों कंडीशन में यहाँ पर ये एक इसको ये पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, और दोनों एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट होने ही नहीं देगा। ठीक है, अब आपके माइंड में एक बात यहाँ पर आ रहा होगा, सर ने यहाँ पर दो वर्ड यूज कर लिया, एक आपने यूज किया क्यू, ये है क्या? तो क्यू जो है वो चार्ज का सिंबल है। ठीक है, चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस टर्म का यूज करते हैं वो क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहां पर ये जाना बेटा कि चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए जब पहली प्रॉपर्टी होगी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट each अदर।
यानी अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट ईच अदर होगा। ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर होगा कि सपोज कीजिए कि बिल्कुल इस तरह से होगा बेटा कि एक चार्जेस अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा चार्जेस नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग मैग्नेट में भी फील करते हैं। आप लोगों ने मैग्नेट के बारे में देखा होगा कि मान लिया कि ये मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है और एक दूसरा मैग्नेट है जिसका मेरा ये साउथ पोल है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर दोनों मैग्नेट का एक नॉर्थ ले रहे हैं और दूसरे मैग्नेट का ये भी नॉर्थ है, तो ये इसको धक्का मारेगा और ये इसको धक्का मारेगा ताकि एक दूसरे से रिपेल हो जाए। तो यहां तक तो हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कि क्या मेरा चार्ज होता है, कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे निगेटिव चार्ज होता है, क्या ये काम करता है, कैसे ये पर्टिकुलर काम करेगा। ठीक है, तो चार्ज के बारे में आ गए। तो अब तक हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना कि इट इज डिनोटेड बाई क्यू। ठीक है, ये स्मॉल क्यू जो है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट चार्ज। इसको हम लोग कहते हैं यूनिट चार्ज, या इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग दूसरे वर्ड में कहते हैं सिंगल चार्ज। पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं, यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं, और यहां पर हम लोग उसको सिंगल चार्ज भी बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। इस कंडीशन में चार्ज जो है वो डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू। चार्ज जो है वो डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू होता है। और कहीं कहीं पे आप लोगों को यहां पर ये नजर आएगा क्यू, तो क्यू इज नोन एज अमाउंट ऑफ चार्ज। Q is known as amount of charge. So here a small q is known as the point charge and q is the amount of charge. It means q1 plus q2 plus q3 plus q4. It means ये सारा जो है यूनिट चार्ज, सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज, it contains some value that is called amount of charge. Clear? Now SI unit of charge is coulomb. SI unit of charge is coulomb. It was given the name by a scientist named Coulomb. Its SI unit is coulomb. So we have already studied that what is charge. It is a fundamental particle of atom. It may be positive or negative. Okay, so the property of charges is that like charges repel each other and unlike charges attract each other. So we have discussed about that coulombs. The amount of charge is Q. Okay, SI unit of charge is coulomb, named after a scientist Coulomb. Okay, in the senior classes you have studied, you will be studied in class 12 the Coulomb's law. Okay, so we are not going to study about right now in the Coulomb's law. So if we are used to find, we need to get 3 more points. Okay, Q, that is Q means amount of charge. Okay, N is equal to number of electrons and E is equal to charge carried by 1 electrons. So so if we need to find the amount of charge, so we use the formula is Q
is equal to n into E. Q is equal to n into E, where Q is amount of charge, n is equal to number of electron and E is equal to charge carried by one electron. अब यहाँ पर एक सवाल आता है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा कितना चार्ज कैरी करता है। वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, हमने अभी को बताया कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। वन इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना चार्ज कैरी करता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि एक क्वेश्चन यहां पर आता है, ये हर बार कॉमन है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये इस तरह से कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम्ब चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम्ब चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो यहां नाउ वी टू फाइंड दिस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम्ब चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब चार्ज। सो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लें कि सॉल्यूशन क्या होगा। हम लोगों के पास है क्या, वी हैव Q हमारे पास दिया हुआ है 1 कूलम, ओके, एंड चार्ज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एनी प्रॉब्लम? ये तो हमारे पास दिया हुआ है, Q हमारा दिया हुआ है कि 1 कूलम चार्ज है। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि 1 कूलम चार्ज में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको निकालने के लिए हम लोगों ने ये जो भी फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर Q हमारा क्या था, अमाउंट ऑफ चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज इक्वल टू चार्ज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। हमको ये फाइंड करना है N। तो N इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा Q बाई E। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलिए, अगर ये ऐसा हो सकता है तो हम लोग इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया 1 कूलम, और चार्ज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देखिए ये माइनस भी होता है और ये प्लस भी होता है। माइनस और प्लस सिर्फ ये बताता है कि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है और ये चार्ज प्रोटॉन कैरी कर रहा है। तो जब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हमारे लिए हो जाएगा 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6, ओके। ये हमारा जो 10 पे पावर -19 कूलम है, ये जो आप देख रहे हैं कि 10 पे पावर -19 कूलम है, इसको अगर हम लोग ऊपर कर दें तो ये मेरा हो जाएगा 10 पे पावर 19 रेसिप्रोकल। हम लोगों ने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा ना है कि 1 बाई ए पे पावर -1 इज इक्वल टू ए पे पावर 1। ये रेसिप्रोकल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। चलिए ठीक है, जब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1 इंटू ये 10 पे पावर 19 है, इसको मल्टीपल के टर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 10 पे पावर 19 है इज इक्वल टू 10 पे पावर 1 इंटू 10 पे पावर 18। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, इसको इस तरह से कर सकते हैं ना, 10 पे पावर 1 प्लस 18, तो ये हमारा 10 पे पावर 19 आ जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग इसको यहां पर लिख सकते हैं कि 10 पे पावर 1 इंटू 10 पे पावर 18, ये हमारा हो गया डिवाइडेड बाई 1.6। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा, चलिए अच्छी बात है। जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 10, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 10 हो जाएगा, इंटू 10 पे पावर 18, ये नीचे में मेरा है 1.6।
ठीक है। अब ये जब मेरा यहाँ पर ये 1.6 है, तो जब हम लोग इसको ये करेंगे तो यहाँ से जब हम लोग पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर में 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 पे पावर 18 डिवाइडेड बाई 16। ये हमने यहाँ पर से पॉइंट रिमूव करके एक 10 दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे पॉइंट, उसके लिए हम लोगों ने एक 10 ये दिया है। ये वाला जो 10 है, ये वाला आप जो 10 देख रहे हैं वो 10 आ रहा है इसके लिए, ठीक है। जब यहाँ से पॉइंट जो रिमूव हुआ उसके लिए ये 10 आया, तो अब हमारे पास बच क्या जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 100 इंटू 10 पे पावर 18 डिवाइडेड बाई 16। क्लियर है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 को डिवाइड देंगे 100 से, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो है आपका आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आपका आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक कूलम चार्ज में ऑलमोस्ट ये 6 पॉइंट इतना भी आ सकता है, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक कूलम चार्ज में मेरा 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स ये होता है। इसको आप डिवाइड दे के दे सकते हैं। आप लोगों ने क्लास 4, 5, 6 में पढ़ा होगा डिवीजन, यहाँ पे हम डिवीजन आपको करके नहीं बताएंगे। और अगर बाय द वे नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग खुद से डिवाइड कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका होगा 16 डिवाइडेड बाई 100। 16 6 जार 96, ये 4 बचेगा आपका। पॉइंट यहाँ पर हम लोग देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 2 जार 32 8, फिर ये 0 उतारेंगे 16 5 जार 80, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इसलिए हमारे पास टोटल एक कूलम चार्ज में 1 कूलम चार्ज आपका जो है वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा। ओके। सो आज के लिए आपका होमवर्क ये हो जाएगा। ये HW क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके आप लोग देख लेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3.25 कूलम चार्ज, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि 3.25 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1/2 कूलम। सो ये आपका 2 क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज एनफ फॉर टुडे। I hope that we will meet tomorrow, and till then stay safe, stay home. Thank you. Have a good day.